ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ, ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵੇਸ਼ਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਭੱਟਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਪੋਥੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 57 ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੋਥੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਟਕੇ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਥਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕੁੱਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਮ ਆਦਰ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ
22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪੰਸਾਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਅਤੇ ਬਾਹੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਯਤਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੰਕਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਾਈਨ ਜਪਜੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਹਰ ਲਿਖੈ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਗਮ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸੇ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਐ। ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਂਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ 4 ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਦਾਸ ਕੇ ਹਰੀਆ ਸੁਖਾ ਮਨਸਾ ਰਾਮ, ਲਿਖ ਦੋ ਜਾਨ ਸੋ ਚਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮ ਬਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਬਾਬੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਠ ਸੱਥ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਹਰ
हम तनवंत भागट सतनाए हार गुण गावें सहज पाए प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निदाना। बाणी संबंधी समग्री इकट्ठी करने तो बाद गुरु जी ने सोध के प्रमाणिक बाणी नूं चंगी तरह पढ़ के सोध के जो लगा मात्रावां ने नखेड़िया उन्होंने अपनी जुगत अनुसार गुरु ग्रंथ साहब जी सन 1604 ईस्वी संपादन किया। उसे आप पीड़ तो अगे उतारे होते गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप सन 1864 ईस्वी तक हाथ लिखत ही रहा अते सैकड़े उतारे वख-वख गुरु धामां अते सिख श्रद्धालुआं पास आदर पूर्वक सुरक्षित रहे। इन्हां हाथ लिखत बीड़ां दीआं मुख तौर ते 4 शाखावां। पहले गुरु अर्जन देव द्वारा 1604 ईस्वी संपादन अते भाई गुरदास जी द्वारा लिखी मूल बीड़ जो हुण करतारपुर के सोढी परिवार पास सुरक्षित दसी जाती है। दूजी भाई बन्नों वाली खारी बीड़ जो भाई बन्नों ने अपने पिंड मांगट लै जान दौरान अथवा लाहौरों जिल्द बनवाउण वेले कई लखारी लगा के मूल बीड़ की नकल वजों तैयार करवाई। ये बीड़ मूल बीड़ तो तुरंत बाद लिखी गई अते इस विच कुछ वाधू बाणियां भी दर्ज कर दित्तियां गईयां। तीजी दमदमी बीड़ जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहब विखे लिखवाई अते गुरु तेग बहादुर जी की बाणी भी शामिल की। भाई मनी सिंह के लिखाई की सेवा निभाई। इसे बीड़ नूं गुरु जी ने गुरुपद प्रवान किया। चौथी बाबा दीप सिंह वाली बीड़ जो उन्होंने भाई बन्नों वाली शाखा के एक उतारे का मूल बीड़ नाम मिला के अगे नौवें गुरु जी की बाणी नूं यथा स्थान शामिल करके तैयार की। फिर उसके उतारे करवा के मुख गुरु धामां ते स्थापित करवाए। उदों अधिकार अधिकतर उतारे भाई बन्नों वाले बीड़ जी के लिखत मिलते सन क्योंकि ये सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जाती सी। मूल बीड़ तो उदों पोथी साहब कहा जाता सी। 7वें गुरु साहब वेले इसनूं गुरु ग्रंथ साहब कहा जान लग्या। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 4 अक्तूबर 1708 ईस्वी को श्री हजूर साहब नंदेड़ विखे गुरगद्दी दिते जान तो बाद ये गुरु ग्रंथ साहिब का नाम के नाल प्रचलित होया। केसर सिंह छिब्बर के बंसावली नामे अनुसार दसम गुरु तो बाद दसम ग्रंथ नालों नखेड़न लई इसनूं आदि ग्रंथ कहा जान लग्या। सिंह सभा लहर वेले इस ग्रंथ नूं दरबार साहब सवारा साहब आदि नामां नाल भी याद किया जान लग्या। इस तरीके नाल जिवें जिवें बाणी गुरु साहिबानां दी भगतां दी भट्टां दी आई त्यों त्यों गुरु साहब महाराज जी उतारे करते गए। उतारियां दे नाल इनूं लिखते गए किहड़े किहड़े भगतां दी किन्नियां भगतां दी किन्नियां भट्टां दी बाणी इहदे अंदर दर्ज की गई। संसार में जिन्ने भी मुख धर्म उन्हां दा आपो अपना धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ उत्ते उस धर्म के सिद्धांत ते नियम आधारित होंदे हैं। सिख धर्म का मूल ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की कई विशेषताएं कारण दूजे धर्मां ग्रंथां नालों विलखण वखरा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरु साहिबान की बाणी गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव ते गुरु तेग बहादुर जी की। ते इहदे अंदर 11 भट्ट बैठे ने, 15 भगतां की बाणी, 3 गुरसिखां की बाणी, सत्य बलवंत की। ये जिहड़ा ग्रंथ है 1430 पन्नियां के बड़े आकार का ग्रंथ है। 22 वारां का ग्रंथ। ये सारी बाणी 31 रागां विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब मूल रूप में गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में संपादित किया सी। इसके पहले स्वरूप नूं पोथी साहब तथा श्री आद ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इसके लिखारी भाई गुरदास जी सन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 102 साल बाद श्री आद ग्रंथ साहब की भीड़ दोबारा तैयार कराई। हम गुरु गोबिंद सिंह जी की इतने आम तौर पर कई शंका हो जाएगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र तो केवल 42 वरियां की रही है। 42 वरे ही सन क्योंकि उन्होंने अपने समय दौरान भीड़ को पहला इन्ना समा हो चुका सी। जो अपने समय आए ने उन्होंने की किया 102 साल बाद श्री आद ग्रंथ साहब की भीड़ दोबारा तैयार करवाई। इसके लिखारी भाई मनी सिंह ने
गुरु जी ने इसके मूल प्रबंध विच बाणी विच कोई तब्दीली नहीं की कि बाणी बदल छड़ी है, बाणी हो ही रही सी। उन्होंने इस विच सिर्फ वादा किया अपने पिता नौवें गुरु तेग बहादुर जी की बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच पांच गुरु साहिबान की बाणी के नाल रागां अनुसार तरतीब अनुसार शामिल कर दिता। सारी विरागमई बाणी गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु जी ने इस पवित्र ग्रंथ को नानकशाही कैलेंडर अनुसार 30 अगस्त 1706 में संपूर्ण किया। 2004 ईस्वी में श्री अकाल तख्त साहिब की अगवाई हेठ समूचे सिख जगत वालों आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश की चौथी शताब्दी पूरी श्रद्धा सत्कार नाल खालसाई जज्बे नाल मनाई गई। पहली बार अमरीका के राष्ट्रपति के सरकारी निवास व्हाइट हाउस विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया। सब तो उत्ते है अज भी इन्नी मानता है। विदेशों के चले जाओ, गोरे अंग्रेज जिहड़े ने अपने इष्ट के ग्रंथ को छड्ड के साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी इनू पूज रहे हैं, अमृत छक रहे हैं, केस रख रहे हैं। उन्होंने सब तो वध सत्कार वेखो तुसीं। ते कथा कीर्तन विचार के करके पूरी श्रद्धा नाल ये शुभ दिहाड़ा मनाया गया। इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता की तीजी शताब्दी भी सारे सिख जगत ने श्री अकाल तख्त साहिब की अगवाई 2006 में पूरे सिख जज्बे श्रद्धा सत्कार और जोश नाल मनाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इको एक धर्म ग्रंथ है जिसनों गुरु साहिबान ने आप तैयार करवाया अपने हथी कोल बह के अपनी अगवाई। होर जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ ने इस धर्म दे बानियां ने अपनी मौजूदगी में तैयार नहीं करवाए। वेदां उपनिषदां के रचनाकारां की पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं है। चार किताबां कुरैत, जबूर, अंजील ते कुरान, बौद्ध धर्म का ग्रंथ धम्मपद और जैन धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक इन्हां धर्मां के बानियां को पिछों इन्हां दे पैरोकारां वालों तैयार कराए गए ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उसे मूल रूप में कायम रखा गया। सिखां नूं इस दी लग मात्र में कोई तब्दीली का कारण जां इनू बदलण का अधिकार नहीं है। जिद्दां लिखिआ बस उदा पढ़ना, लेकिन नाल व्याकरण के अनुसार विच महाराज ने भी कहा लगा मात्रा का भी कारण है, बिहारी शारी का मतलब है। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक अजिहा प्रमाणित ग्रंथ है जिस विच गुरु साहिबान अते होर भगतां दी बाणी शुद्ध रूप में दर्ज है। ये पूर्ण गुरुआं दी पूर्ण कृत है। इस बारे भाई गुरदास जी लिखते हैं पूरा सतगुरु जानिए, पूरे पूरा ठाठ बनाया, पूरे पूरा तोल है, घटे ना वधै, घटाए वधाया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सब तो वड्डी विशेषता ते विलक्षणता है कि यह ग्रंथ इको एक धार्मिक ग्रंथ है जो होर धार्मिक ग्रंथां वांग किसी एक धर्म पैगंबर जां रहबर दासिंग तो नहीं है। इस धर्म ग्रंथ में गुरु साहिबान तो इलावा होर धर्मां दे महापुरखां दी कलाम भी शामिल है, बाणी दर्ज है। इथों देख के अखौती तौर पर अछूत नीच समझे जाते भगतां जिहा कि रविदास, कबीर, नामदेव, सैन, सदना आदि बाणी भी शामिल की। सारे वखरी जातां दे वखरे धर्मां दे ने। इन्हां नूं उस समय लोग नीच कहते सन, छूत कहते सन। गुरु नानक साहब ने इन्हां नूं उच्चा दर्जा दे के इन्हां को बाणी लई अकाल पुरख के प्रति जिहड़ी वड्याउंदी है, इस बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखत रूप दिता। गुरु अर्जन साहब ने भाई गुरदास जी को लिखवाया। गुरु अर्जन देव जी ने अपने समेत 5 गुरु साहिबान की बाणी के नाल हिंदुस्तान के केवल उन्हां संतां भगतां की बाणी शामिल की जिन्हां की बाणी का सिद्धांत अते पद्धर गुरबाणी नाल मिलदा जुलदा सी। इन्हां दी बाणी विच भी निरंकार की पूजा, मनुखी अधिकार अते समाजिक बराबरी का उपदेश दिता गया। इस श्री आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश श्री हरिमंदर साहिब विचों भाई भागों सदी एकम संमत 1661 नानकशाही कैलेंडर अनुसार 1 सितंबर 1604 को किया गया। लै समझो ग्रंथ है आपन कै, हर मंदिर में तीर्थ आपन कै, हुए पूसदा इंथान बिखै, गौरव समुदाय पठै सो लिखे। धार्मिक सहनशीलता की सांझी वालता का पूरा संधान करदियां गुरु साहिबान का उद्देश एक संपूर्ण मनुख तैयार करना सी ते उस लई एक सर्वपक्षी सिद्धांतां ते नियमां वाल पंथ चलाउण दी लोड़ सी। यह पंथ हिंदू मुस्लिम दोवां तो निराला रखा गया।
ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਬਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਖਸਮ ਇੱਕੋ ਜਾਨ। गुरु कै शब्द हुक्म पछान, सगल रूप वर्ण बनवाई को नानक को सलाई। पूजा करो ना निवाद गजारो, एक निरंकाल हृदय नमस्कारो। नाम हिंदू नाम मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। नानक राज चलाया सच कूट सतानी नीमद। लैने धरियो छत सिर कर सिफती अमृत पीमद। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये सी एक ऐसा वखरा निराला पंथ। गुरु ग्रंथ साहब जी का उपदेश सिर्फ सिखा लिए नहीं है, सगों सारी मनुखता लिए है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश धर्म बदली करने की थां मनुख नूं सही अर्थां विच धार्मिक बनाउणा है। गुरबाणी विच हिंदू नूं चंगा ते मुसलमान नूं चंगा बनने की प्रेरणा दी गई है। सर्व सांझे रब की बंदगी विच विश्वास ते मनुखी भाईचारे विच बराबरी ते एकता पैदा करके वख-वख धर्मां दे पैरोकारां नूं एक दूजे दे नेड़े लिआउण दा सफल यतन कीता गया। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तां मुसलमान कहावे, अवल औल दीन कर मिठा, मुश्किल माना माल मुसावे। होए मुस्लिम दीन मुहाने, मरण जीवन का भरम चुकावे। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवावे। तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान का। सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। ब्रह्म विद्या तिता ब्रह्म तना, एक शब्द ले लाए। नव निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिर, जो हर हृदय सदा वसाए। अनेका प्रमाण दिते पादा पढ़िया आगिए, विद्या विचरे सह सुभाए। विद्या सौदे तत ले, राम नाम ले लाए। गुरु अर्जन देव जी ने श्री अमृतसर के सरोवर विचकार श्री हरमंदर साहिब की उसारी करवाई। ये सुंदर भवन गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश प्रांत हरमंदर साहब जो जग अंदर जानिया गया। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश करने की थां सुखासन करने की मर्यादा बनी। गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले ग्रंथी ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख बाबा बुढ़ा जी थापे गए। गुरमत विचकार गुरबाणी का बहुत उच्चा महत्व मनिया गया। गुरु साहबान की बाणी विच शब्द नूं गुरु मनिया गया, क्योंकि पहले जामे च गुरु नानक साहब ने भी अपने आप को गुरु नहीं किया। उन्होंने की किया कि सिद्ध मिले सन भी तू किदा चेला है, तेरा गुरु कौन है? उन्होंने कहा सी शब्द गुरु, सुरत धुन चेला, मेरा गुरु शब्द है। वही 10वें जामे च कहता सब सिखन भोग मैं गुरु मानियो ग्रंथ। इस तो अलावा सिख ने किसी अगे नतमस्तक नहीं होना, मत्था नहीं टेकना। सत्कार सारे धर्मों का करना है, लेकिन पहल जी है सत्कार जोड़ा है अपने धर्म का करना है, अपने इष्ट का करना है, अपने ग्रंथ का करना है। जो गुरुओं ने लिखा इनू मनना है, ये अमल करना है, अपने घर प्रकाश करना है, इस बाणी को पढ़ना है। तो ये बाणी अपने जीवन से भी लागू करनी है, अपने जीवन च ढकाउणी है। गुरु साहबान की बाणी शब्द नूं गुरु मनिया गया। इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार। नाम धारियां में अज भी गद्दी चलती पई है। कल वीडियो वेखी सी कि उन्हां दा अमृत किदां दा है, सिर्फ उन्होंने टेड़ का इशारा लेना, अमृत त्याग करना है, सिखाना उदा ही रीत वही है, लेकिन वो 5 टकार नहीं देंगे। गल च माला पा ली ते अमृत के छट्टे मारे तो इशारा मारा तो अमृत छक लिया। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी एक हुए ने तो सिख भी एक होया। फिर ये रीत किवें चली, क्यों ये भेड़ चाल बनी है? कोई नीलधारी है, कोई कमर कसे वाला है कि सारी भेड़ चाल? गुरु ग्रंथ साहब ने कोई ऐसा सोच विचार सानू नहीं दिता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई ऐसा सिख या ऐसी मर्यादा नहीं बनाई। मर्यादा इको बनाई है, अकाल तख्त इको है, सिख इको है, अमृत भी इको है, जिहड़ा एक वाटे च 5 बाणियां पढ़ के गुरु गोबिंद सिंह ने तैयार करके वख-वख धर्मां दे जातां पातां दे 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ छकाया, अमृत की दात दी। उस तो अगे किन्ना वधिया
हर एक बंदा हर एक प्राणी इस तो प्रभावित होकर मर सकता पिया, सिंह सजदा पिया, जो कुछ दिसिया ताई तो साढ़े सिखों में दिसदा ही नहीं। भेड़ चाल बनाई गई अज भी उन्होंने इस तरह घर में स्टैंड ला के चांदी लगा के थले बंदा बहता नामधारी का गद्दी लगी, दो भरावां की लड़ाई चलती, कलेश चलता है। इस गद्दी के चक्कर च उन्होंने माता शहीद हुई, गोली मार गया कोई शर्म के दिहाड़े। एक ही है गद्दी है कि गुरु साहबान गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जेड़े देखे जो ज्योति जो समोल के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को शब्द गुरु को पदवी देती है। मत्था टेकता कि अज तो सिखो तुहाडा गुरु शब्द गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये मत्था टेकना है। कोई लख आके कि मैं गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन किए हैं जां मैं देह धार च देखा तो मनना नहीं, क्योंकि साडी आत्मा ग्रंथ विच है तो शरीर पंथ च है। क्योंकि जे कोई होंदा जे चार साहिबजादे शहीद ना होंदे तो अगे गुरु की गद्दी चल पैंदी। आप सबनों पता ही है जंग होना सी, साडा धर्म बचना सी, सिक्खी बचनी सी। जे ये शहीद ना होंदे आज आप मुसलमान होंदे, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना होते, ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो सुनत होती सबकी। केड़ा सिख होना सी कि साढ़े को धर्म ग्रंथ खजाना गुरबाणी का होना सी, साढ़े को गुरुद्वारा साहब होने सन, गुरधाम होने सन। उदों भी सानू ननकाना साहब, पंजा साहब आदि गुरुद्वारे तो विछोड़िया गया। तो जो गुरु गोबिंद सिंह ना अपना परिवार त्याग दे, अपने बच्चे ना त्याग दे, माँ बाप की शहीदी ना करवाते तो साढ़े को की होना। उन्होंने अपना परिवार त्यागया, परिवार वारता साढ़े सिर तो साढ़े बच्चों को पुत्रियों को इन पुत्रन के सीस परिवार की सुत चार चार मुँह तो गया हुआ जीवत कई हजार। उन्होंने हथ करके कहा सी औरंगजेब नूं अते जिन्हां जिन्हां नाल गुरु गोबिंद सिंह भिड़े कि यह ना समझो कि मेरे चार लाल शहीद हो गए, तुसी चार चिंगाड़े बजा के समझो कि पंथ खत्म हो गया। अदे ते मेरा कुंडलिया नाग खालसा जिंदा है जिन्हें तेरे पैर थले भांबड़ बचाने सब तो वड्डा है। सो सतगुरु महाराज कहते भाई शब्द गुरु भाव सागर तरी है, एक उत एक हो जाना। सो जेडे इदां दी मूर्खता करते हैं ना, शब्द गुरु का पला छड़ के होरां दे दर ते होरां ते टेक रखते हैं। मन की टेक बिरथी सब जान, गुरु अर्जन साहब कहते हैं सच करके जान लियो। जेडे जाते ने बंदियां दे भरोसा रखते हैं, टेक रखते हैं, उन्हां अगे अरदासां मंगते हैं, उन्हां कोल बच्चियां दे पुत्रां दे फल मंगते हैं। मानुख की टेक बिरथी सब जान जीवन को टेक है भगवान, इन्हां कोल कुछ नहीं है। ये तो आप भिखारी ने, जगत भिखारी फिरता है। ये तो आप भुखे ने गए तुहानूं की देणगे, मंगो दे कोलों जिहड़ा सारिया जियां दा दाता है। सो ऐसे वाहिगुरू सिमरना करो। असी उहदे लड़ लगे हाँ तो लाया किने गुरु नानक साहब ने, ते पक्का किने कीता मुर्ग ने लाई गुरु अर्जन साहब ने शहीदी दे के, ते ये फल मिलया जाके 10वें जन्म में गुरु गोबिंद सिंह वेले। ते आखिता सब सिखन को मैं गुरु मानियो ग्रंथ जो प्रभु को मिल वो चाहे, जिहड़ा वाहिगुरू मिलना चाहता है गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करने ने, गुरु गोबिंद सिंह नाल वचन विलास करने ने। रोज शब्द मैं ले, रोज बाणी पढ़ो, विचार करो, ये अमल करो, तुहाडे नाल गुरु साहिबान वचन करनगे, तुहानूं दर्शन भी देंगे। मन मन जिहड़ा साफ नींव साफ रखोगे तो मारे कहते गुरु नानक साहब आके तुहाडे घर बह जाएंगे। भाई लालो वांग कोदे की रोटी खाणगे आके तुहाडे घरों, जिद्दां दा मर्जी तुहाडा घर होवे, गरीबी होवे, जिद्दां दा मर्जी तुहाडे घर पकवान है, गुरु महाराज तुहाडे घर आके निवाजणगे। तो जे नीयत साफ नहीं, नीयत में मैल है, गंद भरिया तो मग भागू वर्गा तरले भी करता रह जाए तां भी गुरु नानक साहब के घर नहीं जाते। गुरु रहमत करे। इदां दी सारी विचारधारा गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का भाव, शहीदां दे जीवन की सिक्ख्या, गुरु साहिबानां दे गुरु धामां दे जीवन की सिक्ख्या साडे घरां विच, साडे बच्चियां परिवारां विच वरते। गुरु साहब अगे अरदास करें गुरु महाराज जी जिन्ना समा गुजर गया है अगे का समा बख्शो, सानू सोझी दो कि असीं अमृत पान करिए, गुरु वाले बाणी की बाणी पढ़िए, अमल करके जीवन सफल करिए। बेअंत बेअंत भुलां दी किरपा दोबारा तो फिर समूह संगत नगर नूं, समूह खालसे नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पहले प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाइयां। गुरु कृपा करे आप सबना दे सिर ते मेरा हथ रखे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।